پی ایم ایل این کی 2 اہم شخصیات پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. جاوید کا بھی یہی رہا تھرو آؤٹ کیریئر. کبھی شیخ حیدر کے ساتھ کھڑے رہے, مرحوم شیخ محمد علی کے ساتھ کھڑے رہے, پھر اختر کے ساتھ ان کے اختلافات آ گئے, پھر ایک سٹیج پہ 2004 میں یہ اختر کے ساتھ محمد علی اختر جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن ان کے ساتھ کھڑے رہے. تو ان کا بھی یہ ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر یہ جو ہے نا خلا بازیاں مارتے ہیں. پی ایم ایل این کا ایک بہت زبردست کام یہی تھا کہ انہوں نے جو بھی اعلانات کیے ان پہ عمل درآمد ہو گیا. مثلاً میاں صاحب آئے تھے اپریل جو اعلان کیا وہ سارا میں کچھ عرصے بعد الیکشن ہونے تھے, الیکشن کے فوری بعد شیگر کھرنم ہونے کے لیے اسلام جو انہوں نے اعلان کیا تھا. جوہرس کا ضرور کا بھی 2015 میں میاں صاحب نے آ کے للی جان اسٹیڈیم میں اس کا اعلان کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئیبیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ اور میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر. دسمبر کے ان سرد دنوں اور مہینے میں بھی سیاسی ہلچل اور سیاسی سرگرمیوں نے سیاسی ماحول کو کسی حد تک گرم کر دیا ہے. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رکن اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے حالیہ الیکشن میں ٹکٹ ہولڈر وزیر حسن سکردو روندو سے تعلق رکھنے والے امیدوار تھے. انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے. اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون دنیور سے کیپٹن ریٹائر محمد شفیع جو اس دور میں اپوزیشن لیڈر بھی تھے ان کو بھی ان کی وکٹ گرانے میں بھی کامیاب ہو گئی. اس کے علاوہ متعدد ایسی افراد ہیں, ایسے سیاسی نمائندے ہیں جو اس وقت سیاسی کلا بازیوں کے دہانے پہ ہیں اور آئندہ دنوں میں ان کے حوالے سے خبریں آئیں گی وہ کون کون سے لوگ ہیں اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون اس بے وقت اور بے موسم موقع پہ شمولیتیں کیوں کرا رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی جانب لوگ کیوں نہیں جا رہے ہیں, سر دست ایسی کوئی خبر نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے وزیر اعظم پاکستان کے دورہ سکردو میں جو کل یعنی 16 دسمبر کو وہ سکردو کے دورے پہ آ رہا ہے. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تذکرہ ایمان شاہ صاحب. شاہ صاحب سب سے پہلے خوش آمدید. مسلم لیگ نون سر الیکشن میں صرف 2 سیٹیں جیت سکی, لیکن جس طریقے سے اس کے بعد سے تنظیمی ان کی ایکٹیویٹیز رہی ہے وہ تو ٹاپ ایکسیلیٹر پہ لگے ہوئے ہیں. نون لیگ کا تو آپ اگر 2009 کا الیکشن دیکھیں تو اس میں ان کو بہت بری طرح شکست ہوئی. جان باز صاحب جیتے تھے اور مفتی عبداللہ صاحب جیتے تھے گانچے سے. مفتی عبداللہ صاحب کا تو ان کا مذہبی ووٹ بینک ہے اور جان باز صاحب ظاہر ہے وہ ٹرائبل سوسائٹی ہے تو اس کا بھی اپنا ووٹ بینک ہے. باقی سب ہار گئے. اس کے بعد پھر ہارنے کے بعد وہ بری طرح شکست کے بعد مسلم لیگ نون کو آپ نے دیکھا اس وقت بھی شمولیتی پروگرامز نون لیگ میں سب سے زیادہ رہے. سب سے زیادہ تھے. کل ولی اس میں شامل ہوئے, فدا محمد ناشاد کی شمولیت ہو گئی, اسی طرح کئی اہم سیاسی شخصیات پورا صفایا کر دیا تھا. اب یہ جو ایک چل رہا ہے جس میں وزیر حسن صاحب آج شامل ہو گئے نون لیگ میں, اس سے پہلے کیپٹن ریٹائرڈ محمد شفیع خان شامل ہو گئے. کیپٹن ریٹائر محمد شفیع خان اسلامی تحریک پاکستان, نون لیگ, پھر دوبارہ اسلامی تحریک, پھر قاف لیگ, پھر اب نون لیگ. اور وزیر حسن کا بھی ہے کہ پیپلز پارٹی, پھر پی ٹی آئی, پھر نون لیگ. وزیر حسن صاحب ایک بار ہی رہے ہیں اسمبلی میں. وزیر حسن 2 مرتبہ جیتے ہیں. وزیر حسن 2 مرتبہ جیتے ہیں اور ظاہر ہے وہاں کی وہ اس کا وزیر حسن صاحب وہ زیادہ بولتے نہیں ہیں لیکن عوامی اس میں جو یہ ڈاؤن ٹو ارتھ والی ایک سچویشن ہے وہ بہت زیادہ لوگوں میں گل مل حلقے میں بہت پاپولر ہے. ان کی اپنی ایک سیاسی ساکھ ہے. پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے, بعد میں ان کو ٹکٹ نہیں ملا. پی ٹی آئی سے ٹکٹ ملا سوری ان کو پی ٹی آئی سے ٹکٹ ملا, یہ ہار گئے. اور اب اگر آپ نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کیا, آپ کو ٹکٹ ملا ہے, آپ ہار گئے, تو اس کے بعد جواز نہیں ہوتا تھا کہ ووٹ چھوڑ کے کہیں اور آپ چل جاتے. اب لیکن وہ جواز اس طرح انہوں نے پیدا کیا کہ ان کے مقابلے میں جو آزاد امیدوار الیکشن لڑے جیتے ان کو پی ٹی آئی نے ویلکم کیا, ان کو منسٹر بنایا. تو ظاہر ہے وہاں اس کی جو ساکھ یا سے تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی. پارٹی اس کی نہیں رہی. ظاہر ہے مطلب اب تو وہاں پہ پی ٹی آئی اور راجہ ناصر اللہ خان کے نام ہے نا, باقی وزیر حسن کا نام تو کوئی نہیں رہتا. اس میں ابھی ایک اور جو بڑی شمولیت ہونے جا رہی ہے وہ پی ایم ایل میں نہیں ہو رہی بلکہ پی ایم ایل این کی 2 اہم شخصیات پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. میرے خیال میں جنوری کے اینڈ تک یا 15 ایک تو ڈاکٹر اقبال ہیں دنیور سے,
ठीक ये मिनिस्टर रहे PMLN तामीरात और 1994 में ये तहरीक जाफर पाकिस्तान के टिकट पर इलेक्शन लड़े, सैयद जाफर शाह साहब का मुकाबला किया, 300 वोटों से ये जीत गए, या 300 वोट कम पड़ गए जाफर शाह को, वो हार गए। उसके बाद 1999 का इलेक्शन वो हार गए, जाफर शाह साहब जीत गए, जाफर शाह साहब जीत गए, फिर ये बाहर चले गए। 2009 का इलेक्शन भी ये नहीं लड़े, वापस आके दोबारा उन्होंने PMLN में शमूलियत इख्तियार की। 2015 का इलेक्शन लड़े, भारी अक्सरियत के साथ ये जीते। ठीक है, तहरीक शख्सियत हैं और बहुत ज़्यादा इनको एक डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा मतलब ये जो सुल्तानाबाद और चंडूर के दरमियान जो ब्रिज है, फिर दनियोर के लिए वाटर सप्लाई स्कीम है, इसके अलावा बहुत सारी सड़कें, बहुत डेवलपमेंट साइड पे इनकी बड़ी नज़र है। और फिर ये डॉक्टर इकबाल साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहे, जो जीबी के स्टेटस के हवाले से, आईनी हुकूक के हवाले से वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहे। और आपको याद होगा, हम ज़रा जल्दी भूल जाते हैं, यौम यकजहती कश्मीर पे उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बिल्कुल रियासत का जो बयानिया है उसके बिल्कुल उन्होंने वो बरक्स वहाँ पे बात की और बड़े सख्त बयानात उनके यौम यकजहती कश्मीर मनाने वालों की टांगे तोड़ने का ऐलान, टांगे वही ना, बड़े सख्त बयानात, टांगे तोड़ने की बातें की इस तरह की। तो ये थोड़ा सा वो उसमें है, इस मामले में भी बड़े एक्टिव है। और ये जो उनके इख्तिलाफात फिर आगे हाफिज़ हफीज़ुर रहमान के साथ, और ग़ालिबन अप्रैल 2020 में उन्होंने अपनी वज़ारत से इस्तीफ़ा दिया, बजाय दिया था, मैंने कल से उसके बाद फिर उन्होंने नून लीग का टिकट लेने से इनकार किया, फिर कुछ अर्सा PTI के साथ। एनीवे ये एक डेवलपमेंट आगे होनी जा रही है। डॉक्टर इकबाल और हाजी कुर्बान अपने सैकड़ों साथियों के साथ पीपल्स पार्टी में ये शमूलियत इख्तियार करने हाजी कुर्बान नगीर वाला है। हाँ, ये PMLN ज़िला नगर का जनरल सेक्रेटरी है और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर एंड कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज वगैरह FPCCI कहते हैं, उसके जो इस्लामाबाद चैप्टर है उसके चेयरमैन है हाजी कुर्बान साहब। बड़े अच्छे कारोबारी, अपना को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर भी और बड़ी खिदमत है उनकी अपने हल्के में लोगों को एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, और सोशल वर्कर भी हैं। उसी हल्के से जावेद के मुतालिक भी खबरें चल रही हैं। हाँ, जावेद फिर PMLN में शामिल होने जा रहे हैं। अब वो जावेद ने जिस तरह से, जावेद का भी यही रहा थ्रू आउट कैरियर, कभी शेख हैदर के साथ खड़े रहे, मरहूम शेख मोहम्मद अली के साथ खड़े रहे, फिर अख्तर के साथ इनके इख्तिलाफात आ गए, फिर एक स्टेज पे 2004 में ये अख्तर के साथ मोहम्मद अली अख्तर जो पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन उनके साथ खड़े रहे। तो इनका भी ये है कि कभी इधर कभी उधर ये जो है ना कलाबाजियाँ मारते हैं जम के, और थोड़े से पैशंस के साथ पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। 2015 का इलेक्शन लड़े, हार गए, शेख मोहम्मद अली मरहूम उन्होंने वो इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के टिकट पर इलेक्शन वो जीत गए, फिर उनको हार्ट अटैक हुआ, इलेक्शन में जीत गए, फिर ये जो जनरल इलेक्शन हुआ इसमें ये हार गए। ठीक, तो अब ये भी ज़मीनी इलेक्शन हो गया, ये भी ज़मीनी इलेक्शन था जिसमें हार गए। जनरल में तो अमजद जीत गए, जनरल में तो उन्होंने अमजद ने लड़ा था ना, तो अमजद ने जब सीट छोड़ दी तो उसमें जो ज़मीनी हुआ उसमें ये हार गए। एक ज़मीनी ये जीत गए, एक ज़मीनी इलेक्शन ये बुरी तरह हार गए, बुरी तरह तीसरे नंबर रहे। और अब इनका भी ये इरादा है कि PMLN में शमूलियत इख्तियार करें। तहरीक इंसाफ की जानिब कोई रास्ता नहीं है। मैं तहरीक इंसाफ से पहले जावेद के बारे में बता दूं। जावेद ने वही है ना जो इसने एक नगर में 2015 के इलेक्शन में तकरीर की, वो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। हफीज को ये तकरीर में क्या अल्फाज बताऊं, क्या क्या वो दहशतगर्द की तरह मजहबी के ऊपर देखें, मतलब उन्होंने जिस तरह से 2020 में किसी ने कि आप एक लाइन ले लें लेकिन हुदूद आप क्रॉस न करें किसी भी मामले में। मतलब आज अगर हम अखबारात अगर थोड़े से पीछे जाकर अखबारात उठा के देखें तो के बयानात, तो क्या उससे इम्प्रेशन पड़ेगा। बहरहाल ये इसी को हम सियासत कहते हैं। 2 साल पहले एक किसी को जो है ना दहशतगर्द और उसको पत्नी क्या क्या अल्काबात से नवाजता है, 2 साल बाद ये मेरा कायद है। 2015 में उसके लिए क्या मुग़ल्लिज़ात बकते रहे, आज वही उनका कायद है। ठीक है, ऐसा ही है। एक्सट्रीम पे जाते हैं ये लोग, फिर वापस उसी एक्सट्रीम से नीचे आते हैं। की पीपल्स पार्टी कभी हाँ अमजद के आपस में जितने तलख बयानात का तबादला होता था वो आपको याद है?
सर देखें ना, बस वो तो आप मीडिया को उठा के देखें ना, अखबार को उसका तो प्रिंट मीडिया पड़ा हुआ ना सर, वो उठा के देखें, आपको समझ आएगी कि अब डॉक्टर इकबाल का कायद होगा तो एक्सट्रीम पे न जाए, मतलब लेकिन ये बहुत तेजी से बदलता है, कभी वो गिरेबा पे हाथ होता है, कभी नीचे पाँव पे जो है ये वक्त की जरूरत है कि एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा से कर दूं 16 तारीख का है। अच्छी खबरें लेने देखें जाहिर है अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और जाहिर है उसका गालिबन ये तीसरा दौरा होगा, गालिबन तीसरा बतौर वज़ीर आज़म, और जुगलोर स्कर्दू रोड कंप्लीट हो गया, उसका इफ्तिताह है। स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया, उसका इफ्तिताह है। तो ये बहुत बड़ी, दोनों बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। जो वज़रा के बयानात सामने आ रहे हैं दौरे के हवाले से, देखिए वज़रा के बयानात अभी एक तो ये है कि ज़ाहिर है कुछ चीज़ें तो सामने आ रही हैं कि ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर कुछ अलग और है ना, अबूरी आइनी सूबे के हवाले से भी कोई डेवलपमेंट की इसी मुताबिक बिल्कुल कोई डेवलपमेंट हो रही है। हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन चूँकि ये मसला इसलिए थोड़ा सा रुका हुआ है कि इस्लामाबाद में ज़ाहिर है जब आप बिल पेश करेंगे कौमी असम्बली में तो उस पर होमवर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जो PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ इस इशू के ऊपर शायद जो चीज़ें तय हुई थी वो नहीं हुई। हो सकता है इसकी ज़्यादा इम्कानात है कि प्राइम मिनिस्टर कोई हतमी डेट का ऐलान करेंगे, एक तो ये है। दूसरा ये जो गालिबन साबिक़ वज़ीर हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने इज़्ला का ऐलान किया था, 4 मई इज़्ला का, दायरा तंगीर रुंदू यासीन गुबिस। अब कहीं पे ये भी बात चल रही है कि रुंदू का शायद ऐलान हो, कहीं पे ये बात हो रही है कि चारों इज़्ला के हवाले से अमल दरामद की बात होगी, लेकिन जो भी हो 5-6 भी हो सकते हैं, 5-6 भी हो सकते हैं। जो अली बिन गंडापुर ने तनियोर को अलग जिला बनाने का ऐलान हो सकता है, तनियोर हो सकता है इसको भी वो उसमें शामिल कर ले, क्योंकि जब भी कहीं पे कोई बात होती है अपोजिशन को कहते हैं जी कि जरा तनियोर को जिला तो बनाए ना, ये जो 4 इज़्ला का अमल दरामद का इशू है इसको तो हल करेंगे, क्योंकि इंतज़ामी तौर पर ये जो मामला थे ये बहुत ज़रूरी है। और ये PMLN का एक बहुत ज़बरदस्त काम यही था कि उन्होंने जो भी ऐलान किए उन पे अमल दरामद हो गया। मसलन मियाँ साहब आए थे अप्रैल जो ऐलान किया वो सारा में, कुछ अर्से बाद इलेक्शन होने थे, इलेक्शन के फौरी बाद शिगर खरनम के लिए इस्लामाबाद जो इन्होंने ऐलान किया था। जुगलोर स्कर्दू रोड का भी 2015 में मियाँ साहब ने आके ललितजान स्टेडियम में इसका ऐलान किया था। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का भी मियाँ साहब ने, सबको याद है, सबकी माशाल्लाह साफों की मेमोरी बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये सारे ऐलानात इलेक्शन से 3 महीने पहले गिलगित में ललितजान स्टेडियम में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये ऐलानात किए थे। कार्डियक हॉस्पिटल सब, कार्डियक हो गया, कैंसर हॉस्पिटल हो गया, जुगलोर स्कर्दू रोड हो गया, 4 इज़्ला हो गए, एक भी ऐसा ऐलान नहीं है जिसपे अमल दरामद नहीं हुआ, कोई भी नाशात नहीं था। हाँ उसने कहा जी अब कोई नाशात है, क्योंकि वो फिर मोहम्मद नाशात थे ना, वो बड़े जुगलोर स्कर्दू रोड हवाले से बड़ा, और PMLN के सरकार मियाँ साहब ने ये भी कहा था कि मैं खुद भी किसी क्लोज मीटिंग में शामिल था, जलसे में मियाँ साहब की स्पीच से पहले कोई बहुत ही उसको आप समझ लें इंडोर समझ लें या क्लोज एक मीटिंग थी, उसमें भी मैं किसी मरहले पे शामिल था, कोई 24-25 बंदे थे कि कौन से ऐलानात करने थे। तो वहीं पे मीर साहब को खड़े करके पूछा कि मैं हमजा नगर का ज़िला, मीर साहब आप की वजह से हमजा का ज़िला आप की वजह से बना रहा हूँ, नाशाद को कहा, उसने कहा जी मैं फिदा मोहम्मद नाशाद, ये डायलॉग हुए थे वहाँ पे। फिर वो शायद जलसे में भी मीर साहब को यही कहा था मेरे साहब का नाम लेके, तो ये एक्सपेक्टेड है ये जो रन, बट अगर ऐलानात नहीं भी होती है तो ये बहुत दो बड़ी डेवलपमेंट्स है, जुगलोर स्कर्दू रोड और इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला, ये दोनों बड़े ज़बरदस्त ये डेवलपमेंट्स है। और फिर ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में कुछ डेवलपमेंट्स, ये अर्जुन मुलाज़िमीन का जो कानून था, मुस्तकिली का जो एक्ट था, जो पिछली असेंबली ने 24 जून 2020 को फाइनल माना, उस पे अमल दरामद अब शुरू हो गया बेसिकली। और इसका आगाज़ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इसमें थोड़ा सा क्रेडिट जाता है जो नए सेक्रेटरी इत्तलात हैं सफदर खान को, बिल्कुल सही है। उन्होंने आते ही वो जो तमाम पेंडिंग जो इश्यूज थे उनको देखना शुरू कर दिया, बिल्कुल। और ये जो फिर उसमें ज़ाहिर है फतहुल्लाह खान साहब का भी ये मुलाज़िम जिससे ज़हनी करब में, तो ये सारे तीनों ने मिलकर ये जो किया है गरीब मुलाज़िम है। अब ये कई अरसों से ये सारे अनसर्टेनिटी होती है ना, इस तरह पड़े हुए थे, तो ये बहुत एक बड़ी डेवलपमेंट है कि वहाँ पे उनको मुस्तक़िल किया जो आज उसका क्या होता है ऑर्डर्स उनको बाज़ाब्ता थमा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। नाज़रीन प्रोग्राम आपने सुन लिया, अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।